students, warm welcome. And in this series of taking up relevant questions, we are going to discuss that when we see these answers from a constructive prism, then what can be the further additions and how fast we can write in the examination. There are 100 ways to do the same things, but this is a very curated and a very, very specific exercise which is being done and which is being promoted so that right kind of skills are inculcated. हमने पहले भी economics के we have done a lot of questions beforehand because no rocket science is required, but then smart science is definitely required, and that is what we are trying to address and we are trying to work upon. So here I believe you can see on the screen there are questions. So मैं पहला question पढ़ रहा हूँ. What are administered prices and what is their role? And the second thing is that it is saying I'm going to read it. Just a moment. Yes. What are administered prices? What is their role? Examine their impact on general price level. So आज के इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमने तो इकोनॉमिक का सिलेबस ही कवर कर दिया, इसी बहाने हमने लिखने के तरीके भी सीख लिए हैं. So then the first line states that 1970s to 2002 there was an administrative price mechanism and that operated in the oil sector in India. So administrative prices are dictated by dictated is a very, very specific phrase over here, or centralized authority, and do not change with functions in demand and supply. I guess very perfect start, and it is reflecting upon what is the idea. Role भी बता दिया, protect interest of consumers, price stability, they are income inequality, concentration of wealth, and rise. When we say impact is linked with the rise of administrative price mechanism, leads to direct impact on consumer prices from the supply side, रिजल्टिंग इन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अगर यहाँ पर हम अगर एक छोटा सा डायग्राम भी बना देते तो हमें और भी फायदा होता. इरोडस एफिशिएंसी इज अ वंडरफुल वर्ड. कॉस्ट शॉर्टेज इज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड इन 2017. बोथ डीजल एंड पेट्रोल प्राइसेस वर linked with international crude oil prices. Today the government monitors. What government monitors? Government monitors the prices of the top, that is tomato, oil, tomato, onion, and potato, and accordingly it adjusts the supply of these. So that is wonderful example, and I think it's a very, very dynamic answer. It is written with the idea of the present context, so it is wonderfully done. I think it is on track. It is wonderfully addressed to the present situation. 3 tribal areas in India. मेन कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट ट्राइबल डेवलपमेंट. सो ट्राइबल आपने ट्राइबल कम्युनिटी के शुरू में बताया, प्रिजर्विंग कल्चर एंड ट्रेडिशन वैल्यूज, कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स, वंडरफुली डन. ट्राइबल एरियाज आपने बताया, अंडमान निकोबार, जरावाज, ओंगेज, ओडिशा, संताल्स, खायरा, खोंड, ओरेंस, नॉर्थ ईस्ट, सिंगपोर, देवरी, मिक्रीज, शांग, मिश्मी, नागा. ट्राइबल एरिया आप मेंशन कीजिए, आपने कर दिए, बहुत अच्छे से किए. लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ऐसे एक इंडिया का छोटा सा मैप बना देते, उसमें अगर तीनों दिखा देते, दैट वुड हैव बीन आल्सो एडेड अ वैल्यू टू इट. सो कंपोनेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी ठीक है, वंडरफुल. वनधन योजना भी ठीक है. एंड देन इट इज आल्सो कमिंग ऑफ 5 ईयर विजन प्लान, डिपार्टमेंट ऑफ पीवीटीजी. दिस इज वंडरफुल, बट इसमें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल भी बोल देते, देन वी वुड हैव रियली एडेड अ वैल्यू टू इट. स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन अमंग एसटी गर्ल्स एंड लो लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट, सारा ठीक है. लेकिन इसमें साथ में अगर हम बोल पाते कि कितना लेआउट है बजट का, और हम साथ में अगर ये भी बोल पाते कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या उड़ीसा का स्टेट है, वो स्टेट जो स्पेशली एलोकेट करते हैं फंडिंग को, तो हमारा आंसर और भी बेहतर हो जाता. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्या होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेविड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो आज की डेट में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, आज के क्वेश्चन में जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में आएगा. Which of the yields is highest amount of revenue? तो ये क्वेश्चन आज के डेट में कैसे हो जाएगा? It will be talking about GST, and within GST they will be talking about different kind of उसके डायनेमिज्म जो है वो आ भी चुका है उसके अंदर, किस पे ज्यादा लगता है, किस पे कम लगता है, उसके बाद कौन से पे नहीं लगता है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. तो क्वेश्चन सेम है, लेकिन मेंस का क्वेश्चन है क्योंकि ये तो टैक्स रेवेन्यू आपने बताया, डायरेक्ट टैक्सेस बताया. आप पीडीएफ इसमें बाद में देख सकते हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दैट इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी वी आर प्रोवाइडिंग विदाउट एनी कॉस्ट. सो सिंप्लीफिकेशन हो गया, स्ट्रीमलाइनिंग हो गया, नेट डायरेक्ट कलेक्शंस हो गई, आपने 21 22 का बता दिया, एंड देन डायरेक्ट टैक्सेस बता दिया. अब अगर हम इसको एक पाई फॉर्म में बनाते तो और भी अच्छा, हमारा एक नंबर हमारा और भी बढ़ जाता. कंटेंट सेम रहता लेकिन हमारा कंटेंट का प्रेजेंटेशन बदल जाता. बाकी रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्सेशन, लेविंग ऑफ यूनिट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, दिस इज आल्सो वंडरफुली डन. सो इसमें मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा फिगर्स बल्कि हल्के से और कम हो सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा ये नैरेटिव है, थोड़ा सा ये टेक्निकल है, हल्का सा इसको और फ्लो में डाला जा सकता है, जैसे कि हमने पहले 2 क्वेश्चंस में किया. वंडरफुल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो अमेजिंगली ट्रू. मिनिमम वेजेस क्या होती हैं? क्या ऐसा कोई प्रोविजन है भारत में? तो आपको मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करनी चाहिए, आपको मिनिमम वेजेस बोर्ड की बात करनी चाहिए, आपको लेबर कोड की बात करनी चाहिए, आपको उसके बाद उसके अंदर डीपीएसपी के एक्ट को लेके आना चाहिए. आईएलओ का इन्होंने बताया, तो अच्छा बताया,
यहाँ पर अच्छा दिख रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, लिविंग वेज वाला कॉन्सेप्ट भी आपने बता दिया, सारा बता दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और बड़ा करते इसको, आप इसमें लेके आते कौन कौन से वो प्रोफेशंस हैं जिनके अंदर मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट है, चाहे फिर वो लेबर अनस्किल्ड लेबर है चाहे स्किल्ड लेबर है, जैसे कि अब न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट के लिए भी हम मिनिमम वेजेस की बात करते हैं, हम अनस्किल्ड लेबर के लिए भी बात करते हैं, तो वो सब आने से आंसर और प्रैक्टिकल होता, तो ये यहाँ पर ये चूक हो गई ऐसा हम कह सकते हैं। व्हाट आर लीड बैंक्स के ऊपर पीटी में डायरेक्टली एक बार नहीं, अगर आप पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो पीटी के अंदर भी लीड बैंक बार बार पूछा जा चुका है। तो लीड बैंक किस साल लागू हुआ? 1969 में हुआ। एक बैंक को एक डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है, इंटीग्रेटेड बैंकिंग सर्विसेज अनबैंक एरिया के लिए होती है, रीजनल इम्बैलेंसेस और सारी चीज, कंपोजिट फाइनेंस इंक्लूजन इंडेक्स भी दिया जाता है। तो आई थिंक फ्लो बढ़ा आंसर की, स्पीड बढ़ी आंसर की, मैंने ऊपर से नीचे एक बार तारतम्य के साथ देखा, मैंने इसीलिए आपको बताया व्हाट इज रिक्वायर्ड, की वोकैबुलरी इज विजिबल, कुछ मैंने कमियां बताई, तो वो चीजें देखनी बहुत जरूरी हैं। वो लाने से ही आप आने वाले टाइम में पेपर के अंदर एक राइट अप्रोच से क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। सो इफ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज गेट बैक टू मी एंड राइट बैक टू मी ऑल्सो। आप बताइए अगर आपको कोई डाउट है तो। No, sir, no doubts in this. सो वंडरफुली डन एंड कीप ऑन वर्किंग, स्पीड बढ़ानी है, अलर्टनेस बढ़ानी है, प्रैक्टिस बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सिलेबस को पूरा पूरा करना है, उसको एक जमाल गोटा कहिए या उसको फिर आप काढ़ा कहिए, कुछ भी कहिए, उसको मिला के पी जाना है, तब जाके काम आसानी से होगा। और बाकी तो फिर कहते हैं ना जैसे कहानियां हैं, और बाद में कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। सो विशिंग ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, and do like, share and subscribe our channel, and also get success by getting our personalized services.